Namaskar, hello, and welcome back. Today I'll be talking about one particular topic which was, introduced to me in a very weird way, and the topic is, how to grow in your career, right? So I'm sure that some of you have already started, on your career journey. Some of you are already decided which career you want to be in, and some of you are into the mode of decision, right? As of yet, might not have decided which career you want to be in, but still you are in that thinking mode. Right, whatever category you fall into, right, what the categories that I just mentioned, whatever category you fall into, let me make it very clear to you, right? This particular video is 110% is very much crucial and important for you, right? So I would request you to please stay till the end, so that because today I'll be sharing some secrets with you, right? So it's very important. Alright, so let's begin. And before getting into the details of this topic, let me share some small example of my own life. Right, when I was into the mode of rather when I was on the stage of undecisive stage of my life, and I was not sure that what I wanted to do in my career, right, what I wanted to do in my life. Right, some very gentle person, gentleman, met me, and he asked me a very important question. He asked me कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो? What do you want to do in your life? And I said I want to do something good. मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में. And he was like, okay, fine, fantastic. क्या करना चाहते हो? And I was like, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ. As of yet, I'm not sure, but मैं कुछ अच्छा करना चाहूँगा. He said, very good, fantastic. लेकिन क्या करना चाहते हो? When he started digging it, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये कहीं और लेकर के जा रहे हैं. तो मैंने उनको बोला कि मैं किसी एक अच्छी MNC में काम करना चाहता हूँ, किसी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे काम करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मैं XYZ लीडरशिप रोल में जा सकूँ. I should be in a role of decision making. When I did that, right, he asked me a very simple question, and he asked me a question which was like, fine, ये सब आप करना चाह रहे हो, fantastic, very good, congratulations, but to do all this, right, let me ask this question very straight to you. And he was like looking into my eyes, and he asked me this question, right, whatever you want to do in your life, fantastic, right, but to do that in your coming future, what have you done yesterday and what are you doing today? And that was the moment which I was like, अच्छा ये तो कुछ और बोल रहा है. And that was the moment, right, I realized, okay, this is something which is I never thought of, right? What I want to do tomorrow, what I want to do in coming years, coming months, what I have done yesterday and what I'm doing today has to have some synchronization. Otherwise, what I have done in my past, what am I doing today, and what am I going to do tomorrow will not have any coordination in between, and that will definitely put me into a situation wherein probably I will not be very sure that what I want to do in my life, और जो कुछ मैंने अब तक किया वो भी शायद ज़ीरो हो जाएगा. That was the moment when I thought and I said कि okay, मैं जो आगे अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, या मुझे जो भी अपनी लाइफ में आगे कुछ करने का मैं सोच रहा हूँ, वो अगर मुझे करना है तो मुझे आज से उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा. राइट, सो ये सारा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया बिकॉज आई हैव interacted with many students and many people across all the walks of life, right? And when I asked them this question that what do you want to do in future, right, आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, या आने वाले सालों में आप क्या करना चाहते हो, तो some have very clear answers, right? I want to do X, Y and Z things, sir. This is something which I have already decided, और यही सारी चीज़ें मैं करूँगा. उसके लिए मैंने ये किया, ये किया, ये किया, और मुझे आज तक ये सक्सेस मिली, यहाँ से आगे मुझे ये मिलने वाला है. फाइन, राइट. But surprisingly, right, I know with a very heavy heart I'm sharing this figure with you, but the percentage of having this kind of clarity is hardly 5% of people whom I have interacted with. So सिर्फ 5% लोगों के पास ये जवाब रेडी होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या किए, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, उसका तालमेल बैठता है. Right, so they are very clear with their career graph, career path. But most of the people, right, almost 80% of the people are not sure कि उनको क्या करना और क्यों करना चाह रहे हैं. राइट, सो आई डोंट वांट यू पीपल टू फॉल इनटू दैट ट्रैप जहाँ पर मैं भी था. राइट, उस सारे 80-85% वाला जो कैटेगरी है उसमें मैं भी बहुत देर तक था, जहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ या किस तरह से मैं अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहूँगा. राइट, सो छोटा सा एग्जांपल और अब मैं आपको देता हूँ. राइट, वी ऑल हैव फोन्स विथ अस. हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर्स यूज़ करते हैं. ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या जो भी हम लोग एक्सेसरीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वी ऑलवेज प्रेफर दीज एक्सेसरीज टू बी अपग्रेडेड वर्जन्स.
हम कोई नहीं चाहता कि हम लोग अगर आज विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ का मैं 97 का वर्जन लेकर के मैं 2020 में काम नहीं कर सकता, मुझे उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एंड्रॉयड का पुराना कोई वर्जन 3.0 4.0 लेकर के मैं नहीं चल सकता, मुझे अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। मैं अगर आज एक छोटी सी टू व्हीलर भी अगर चलाता हूँ, राइट, तो मुझे अगर कोई एक एक्टिवा चला रहा हूँ, आई एम नॉट ब्रांडिंग एनी पर्टिकुलर कंपनी बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट। अगर मैं एक एक्टिवा चला रहा हूँ तो मुझे वो भी 4G 5G 6G चाहिए होता है, राइट। अभी तो 6G आ भी गई, राइट। आई डोंट वांट टू राइड अ लूना। अगर मैं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आऊँ कि भैया मैं आपको एक्टिवा 6G दे रहा हूँ और एक लूना दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ़ यू आर नॉट कंप्लीटली इनटू विंटेज व्हीकल्स के अगर आप दीवाने नहीं हैं तो आप एक्टिवा के साथ ही जाएंगे, आप लूना के साथ नहीं जाएंगे, राइट। जस्ट बिकॉज इट गिव्स यू स्पीड, इट गिव्स यू एवरेज ऑल्सो, राइट। तो वो थोड़ा सा आप उसके ऊपर ज़्यादा हेवी लोड लेकर के भी जा सकते हैं, 125 सीसी उसके ऊपर का भी गाड़ी चलता है। तो अगर इस तरह का वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और इस तरह की गाड़ी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ियों में, लैपटॉप में, मोबाइल में अगर हम लोगों को इतना हेवी वर्जन चाहिए तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया अगर गाड़ियाँ आपको अपग्रेडेड चाहिए, हम लोगों को लैपटॉप अपग्रेडेड चाहिए, हमको मोबाइल अपग्रेडेड चाहिए, तो हमारे अपग्रेडेशन की बात कहाँ हो रही है? When was the last time that we thought of upgrading ourselves, right? That is the very basic question that we should ask ourselves every day, right? Because every day we need to upgrade ourselves at least by 1%, right? Be it of any skill, right? Soft skills की अगर आप बात कर रहे हैं, hard skills की अगर आप बात कर रहे हैं, be it language, be it your attitude, be it your approach, be it your confidence, be it anything. But the question is, have you upgraded yourself? If we are not upgrading ourselves, then we are not going to be into the competition, which is definitely going to be a cutthroat competition. राइट नाउ वी आर इन अ स्टेज ऑफ लॉकडाउन, सब लोग घर के अंदर हैं, सारी पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, सब घर के अंदर है, अब कुछ लग नहीं रहा। लेकिन जिस टाइम ये लॉकडाउन हटेगा और उसके बाद जब सारे के सारे लोग बाहर निकलेंगे और दुनिया एब्सोल्युटली अलग होगी। आज जो दुनिया हम लोग जी रहे हैं और जिस तरह की ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क, और यहाँ से आगे चल करके जो हम लोगों के सामने ज़िंदगी आकर के खड़ी हो जाएगी वो डेफिनेटली अलग होने वाली है। सो अगर मैं अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं डेवलप नहीं हो रहा हूँ, मैं डेवलप नहीं हो रहा हूँ तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, राइट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ अपने आप हो जाती है, राइट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, 4 साल के थे, तो अपनी जो ग्रोथ हुई वो अपने आप हुई, उसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसके लिए जो पोषक, जिस तरह का वातावरण होना चाहिए, जिस तरह की एटमॉस्फेयर आपको मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिलेगी तो आपकी सिर्फ ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, right? So I want people to grow, at the same time I want people to develop themselves as well, right? So अगर आज की डेट में मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं स्किल्स के मामले में अगर आपसे बात करूँ तो स्किल्स के मामले में अगर हम लोग आज की डेट में, इफ़ आई नो दैट आई एम नॉट वेरी गुड इन टू कम्युनिकेशन, सो आई नीड टू इम्प्रूव ऑन माई कम्युनिकेशन। आज मुझे अगर ये मौका मिल रहा है अपने आप को अपग्रेड करने का, तो क्या मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ? क्या मैंने अपने आप को अपग्रेड किया? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट, मैं कई बार MBA स्टूडेंट्स के साथ मैं ये उनसे पूछता हूँ कि भैया आने वाले टाइम में आप क्या करना चाहते हो, यू आर डूइंग MBA फ्रॉम सच अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ सेशंस के लिए, तो दे से दैट आई वांट टू बी इन अ लीडरशिप रोल, आई वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर इन आई विल बी लीडिंग अ टीम, राइट। सो सवाल बड़ा सिंपल होता है कि फाइन, यू वांट टू डू दैट, बट व्हाट आर यू डूइंग टुडे टू बी इन दैट रोल टुमारो, राइट। सो क्या आप आज आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको लीडरशिप की कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, लीडरशिप में अगर आप कुछ ग्रो कर सकें, ऐसा आपने कुछ किया? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द आंसर इज़ नो, right? Most of the times the answer is they are working on that particular moment. उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उसी मोमेंट को जी रहे हैं। आने वाला जो टाइम है उसके बारे में अभी तक कोई प्रोसेस ही नहीं बनाई, उसके बारे में हमने कोई सोचा ही नहीं। अगर मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, मैं अगर उसके लिए लेकर के अगर मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी, अगर मैं उसको लेकर के मैं कुछ सोच नहीं रहा, तो डेफिनेटली आई एम वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट ईयर, दैट मंथ, एवरीथिंग। तो मैं सारी चीज़ें दांव पर लगा दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू एन्जॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट। Let me be very clear with this, right? When I say that you are enjoying that moment, I am not against the fun part. You should definitely have fun in your life, but at the same time, you should also ensure that when the fun is there, learn should also be there, right? So fun and learn अगर दोनों साथ में चलेगा तो ज़िंदगी अच्छी बनेगी। सिर्फ फन 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 अगर चलता रहेगा तो ज़िंदगी फिर फनफनाती हुई निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कब ज़िंदगी आगे बढ़ गई, राइट। फिर लर्निंग वाला मौका फिर ज़िंदगी में 40-50 साल गुजर जाने के बाद लगता है कि यार काश मैंने वो काम उस वक्त कर लिया होता तो शायद ज़िंदगी और हो सकती है, right? Don't fall into that trap, right? Today if you are just a graduate student, right? अगर आप अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के हर साल को एक टारगेट दे करके रखिए कि आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ डेफिनेटली बात करूंगा। लेकिन आज का मेरे पास टारगेट क्या है कि मैं फर्स्ट ईयर में मैंने क्या करना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर में मैंने क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग योर प्रॉब्ली अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आर्किटेक्चर बनना चाह रहे हैं, राइट, या अगर आप लॉ कर रहे हैं 12th के बाद का,
तो आपके 5 साल के कोर्सेज होते हैं, राइट। इंजीनियरिंग कर रहे हो 4 साल के कोर्स होते हैं, तो हर साल को एक टारगेट दीजिए। अगर आप रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप हर साल को एक टारगेट दीजिए। तो फर्स्ट ईयर में आप जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से होनी चाहिए। सेकेंड ईयर यू नीड टू हैव सम डिफरेंट टारगेट ऑल टुगेदर, राइट। थर्ड ईयर यू नीड टू हैव अ डिफरेंट टारगेट ऑल टुगेदर। मैं फर्स्ट ईयर में जैसा था वैसा ही अगर मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने किया क्या फिर? आई एम एब्सोल्युटली, मैं जिस तरह से मैं कॉलेज के अंदर आया और जिस तरह से मैं कॉलेज के बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर एज अ पर्सन मैं ग्रो नहीं किया हूँ, तो डेफिनेटली आई एम नॉट ग्रोन, राइट। आई एम नॉट डेवलप्ड। मेरी सिर्फ ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ एज। मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ गए हैं, राइट। कुछ लोगों के बाल झड़ जाते हैं, राइट, दैट हैपन्स, होता है, राइट, ये इट्स एब्सोल्युटली ओके, राइट। बट ये अगर हुआ है तो उसके बाद मैंने ग्रो क्या किया? मैं अगर करियर में, आने वाले करियर को अगर मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को किसी एक पायदान पे देखना चाहता हूँ, तो उस पायदान तक पहुँचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। जो मैंने वीडियो के शुरू में भी मैंने आपसे मैंने बोला था कि वी नीड टू वर्क ऑन अ वेरी सिंपल ग्राउंड लेवल वाले काम हम लोगों को करने हैं, राइट। कोई रॉकेट साइंस की बात मैं अपने किसी भी वीडियो में आपके साथ नहीं करूँगा। मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, राइट। जो काम आज आपसे 2 साल बाद करना चाह रहे हैं, राइट, आपसे जो भी 2 साल बाद काम कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको करने के लिए आज आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट। आज अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं लीडरशिप रोल में जाना चाहता हूँ, तो लीडरशिप रोल में जाने के लिए, लीडरशिप का मतलब है लोग मेरी तरफ देखेंगे एज ए लीडर। अगर लोग मुझे एज ए लीडर करके देखेंगे तो मुझ में लीडरशिप वाली कौन सी क्वालिटीज़ हैं? मैं अपने आप को कहाँ डेवलप कर रहा हूँ? अगर मैंने अपने आप को डेवलप नहीं किया, अगर मैंने अपने आप को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, या आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने इनकैश नहीं किया, तो डेफिनेटली आई एम नॉट ग्रोइंग। और अगर मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपनी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डेवलप नहीं हो रहा हूँ तो भैया मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। मेरे साथ पढ़ने वाले लोग मुझसे 4 कदम आगे निकल जाएंगे, मैं वहीं बैठा रहूँगा। देन आई विल बी क्रिबिंग कंटिन्यूसली कि वो आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। डोंट ब्लेम इट ऑन एनीवन। इट इज़ यू, इट इज़ मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स। ऐसा नो, राइट। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए जितना जिम्मेदार हूँ उतना दूसरा कोई भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए जितने जिम्मेदार हैं उतना दूसरा कोई भी नहीं होने वाला है, राइट। सो माई सिंपल रिक्वेस्ट, माई सिंपल एडवाइस, फ्रेंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, whatever you want to do in your coming days, start working on it today. अगर आप आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अच्छा इंजीनियर बनने के लिए अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती बाय द वे, राइट। मेरे हिसाब से जो अच्छा है वो आपके हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत एवरेज हो सकता है। आपके हिसाब से जो बहुत अच्छा है वो मेरे हिसाब से बहुत एवरेज हो सकता है। आई डोंट नो, राइट। अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। बट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, यू नीड टू सेट अ गोल, राइट। एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको 2 साल के बाद क्या करना है। 2 साल के बाद आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आज आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। सो आज से उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। अगर 2 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं लीडरशिप रोल में जाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आज कौन से एफर्ट्स ले रहा हूँ। अगर मेरे एफर्ट्स उन सारी चीज़ों को लेकर के एक साथ बनाते हैं और अगर उसमें कोई एक सिंक्रोनाइजेशन मुझे अगर नज़र आती है तो डेफिनेटली मैं अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। अगर उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। और मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम में पड़े, राइट। जो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे बताया था कि मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करूंगा और छोटे छोटे सीक्रेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो वही सीक्रेट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, राइट। मैं समझता हूँ कि मैं जो भी आपके साथ बात कर रहा हूँ वो सारी बेसिक लेवल की बात हो रही है। मुझे कई आपके ईमेल्स भी मिले और आपके कमेंट्स से भी मुझे समझ में आता है, right, that you people are accepting whatever I am sharing, right, but even if at all you have some other points, अगर आपके पास कुछ और हैं जो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स भी मैंने इनकॉर्पोरेट करने चाहिए थे अपने बातों में, तो डेफिनेटली मुझे वो शेयर करिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है ये आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करिए। और आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, right. I'm really very glad that you people are supporting me like anything, and I'm deeply humbled and I'm very happy to see such a huge response and fantastic support. So thank you so much for your kind patience, and I would request you all to please stay home, stay indoors and stay safe, and at the same time do like, share and subscribe। अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को अभी तक आपने अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करें। और अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स हैं, सुझाव हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो वो भी आप मुझे डेफिनेटली शेयर करिए। मैं उनको भी अपने आने वाले वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और जो भी आपको लगता है डेफिनेटली आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड होप टू सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू।